خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج تو مسکرانے کا دن ہے کیونکہ گزر گئے ہماری آپ کی اس رفاقت کو جو اس چھوٹے سے ٹیلی ویژن سے ہم سب کی ہے۔ انکل عرفی سے بات شروع کرتے ہیں تو آج رنجش تک، جھرنے سے لے کے راگ مالا تک، اور پھر جب شیشے کے گھر کی بات ہوتی ہے ہمیں یاد آتا ہے تو بات پہنچتی ہے اسٹوڈیو 3 تک۔ اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے علم، مقصد اور تفریح۔ حد تو یہ ہے جناب، ماننے والی بات ہے کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے گھر کا ایک ایسا فرد ہے جو 32 سالہ ذہین فرد کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہ کونے میں نہیں بیٹھتا بلکہ وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، ہنساتا ہے، سکھاتا ہے، رلاتا ہے، کبھی کبھی ڈراتا بھی ہے۔ آج کی شام ان لوگوں کے نام جنہوں نے 1964 میں دیے سے دیا جلایا۔ ہم آج اس اسٹیج شو کے ذریعے، آج جو کوئز شو یہاں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کی یادیں دہرائیں گے، ان ٹیلی ویژنز کو، ان یادوں کو پکاریں گے، ان خوبصورت چہروں کو دیکھیں گے اسکرین کے ذریعے، اور دیکھیں گے کہ ہماری آج کی نسل جو ہے ان کے دماغ کتنا کام کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ ٹیلی ویژن نے کتنا اثر کیا، انہوں نے کتنا ان کو یاد رکھا۔ تو جناب اس کا طریقہ کار ہو شروع کرنے کی 68۔ یہ جی 50 نمبر کا سوال ہے اور بہت زبردست سوال آ گیا۔ یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے صوفیاء کرام کے مزارات اور تاریخی عمارات کے بارے میں حالات حاضرہ کا پروگرام جسے محمد فیاض پیش کرتے تھے، اس کا نام بتائیے۔ بہت اپنے دور میں مشہور ہوا۔ ورثہ۔ ورثہ جواب درست ہے۔ 69۔ ویژول ہے جی۔ اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ اچھا دیکھ لیا جی آپ نے، غور سے دیکھا ہے نا۔ 1990 میں منعقدہ عالمی ہاکی چیمپئن کی ایک ٹیم کو پریکٹس کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس پریکٹس کے دوران آپ نے غور کیا ہوگا ایسٹرو ٹرف پہ کتنے بال رکھے ہوئے تھے؟ 8۔ 8 جواب درست ہے۔ معزز خواتین حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی السلام علیکم۔ آج کا یہ شو، کوئز شو، طلبہ اور طالبات کے درمیان ہے کشمیر کے حوالے سے۔ انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد رہے، لیکن آج ممالک ایسے ہیں کہ جو دوسری قوموں کو غلام بنا کر، لیکن یہ میرا اشارہ کشمیر کی طرف ہے۔ آج کا دن اگر سورج غروب ہوتا ہے تو کم و بیش 50 برس ہوتے ہیں کہ ادارہ اقوام متحدہ کی فائلوں میں وہ قراردادیں کہنے کو بوسیدہ ہو چکی، لیکن کشمیریوں کے دلوں میں وہ قرارداد آج بھی زندہ ہے، اور اسے آئندہ تک رکھنے کے لیے کشمیری آزادی حاصل کرنے کے لیے کشمیری اپنے خون کے نذرانے دے رہے ہیں، اور ہندوستان کی 7 لاکھ فوج انسانیت سوز مظالم کر کے کشمیریوں کو آزادی کے راہ سے ہٹانا چاہتی ہے، اور وہ راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک طاقت آزمائی ہو رہی ہے، اور کشمیری ضمیر اقوام عالم سے مجسم سوال بنے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اور کتنا لہو چاہیے تمہارے ضمیر کو جاگنے میں۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، جب تک کشمیریوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے حق خود ارادیت استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ زندگی کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ یہی قراردادیں ہیں جو یو این او کی الماریوں میں محفوظ ہیں،
और यही करारदादें हैं जिस पर पाकिस्तान अमल करवाना चाहता है, यही वो करारदादें हैं जिस पर कश्मीरी अमल करवाना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई हल ना पाकिस्तान को कबूल है, न कश्मीर के उस बच्चे को जो अभी मां की गोद में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आपकी बारी। उस हस्ती का नाम बताइए जिसने रंचन को मुसलमान किया था। सैयद शरफुद्दीन अब्दुल रहमान, उन्हें बुलबुल शाह कहते सैयद हैं। शरफुद्दीन अब्दुल रहमान, उन्हें बिलावल शाह या बुलबुल शाह भी कहा जाता था। सबसे पहले आप क्या करेंगे इन पैसों के साथ? मैं इंशाल्लाह वालिदैन को अपने याद करूंगा। माशाल्लाह, वालिदैन को आपका बेटा 5,25,000 रुपया, 6 लाख रुपए की वेल डन। जवाब ठीक था, सिर्फ 100 साल का फर्क। 8 लाख रुपया। जब वजीर आजम जुनेजो की हुकूमत डिसमिस की गई तो कौन सी तारीख दी गई नेशनल असेंबली की इलेक्शंस के लिए? आफ्टर द डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो, व्हिच डेट वाज डिक्लेयर्ड फॉर नेशनल असेंबली इलेक्शंस? 8 जून, 16 नवंबर, 27 अक्टूबर के 21 दिसंबर। चॉइस दीजिए 16 नवंबर। आप कहते हैं कि 16 नवंबर चॉइस दी गई इलेक्शंस की, और किसने ये चॉइस दी? ज़ियाउल हक साहब ने। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 16 नवंबर चॉइस दी और 50,000। इन फुटबॉल द मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल इज 32 इंच, 28 इंच, 34 इंच के 54 इंच। मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है मैक्सिमम 71 सेंटीमीटर, 28 इंच। 28 इंचेस। आप कहते हैं 71 से दिया हुआ बेटा, उसमें भी दिया हुआ है, चॉइस भी दी हुई है। आप कहते हैं ऑप्शन बी 71 सेंटीमीटर, 28 इंच प्रेस और 50,000। हमारे साथ हिस्सा लिया मोहम्मद इमरान एट कंप्यूटर नंबर 5, और आप हकदार हैं जी 25,000 रुपए के। कंप्यूटर नंबर 6 पे बैठे हैं मोहम्मद माजिद, आपने एक सवाल का जवाब दिया जी, आप हकदार हैं 25,000 रुपए के। और साजिद इकबाल साहब, आपने बहुत कमाल खेले हैं, आप हमसे जीते हैं 8 लाख रुपए। नाजरीन, हुण असीं अपने फाइनल राउंड विच पहुंच गए हैं, जिसका नाम है IQ राउंड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਰਾਉਂਡਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾजिद इकबाल, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 21 ਜੂਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਵੀਲ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। हाँ ठीक जवाब। माल्टा एक मुल्क का नाम है, हाँ या ना जवाब दो। ठीक जवाब। मुकम्मल करो 1 + 7 - 6 2। ठीक जवाब। मुहावरा मुकम्मल करो बेवकूफां दे सिर ते डैश सिंह नहीं होंगे। ठीक जवाब। वीनस शहर नू समंदर दी दुल्हन कहंदे ने। जी हाँ। ठीक जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा दा हेडक्वार्टर अमरीका विच है। जी हाँ। मुतफरिक वक्त करो पहिया गाड़ी ट्रेन पहिया। ठीक जवाब। BBC तो की मुराद है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन।
ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 366 ਦਿਨ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਮਲੇਰੀਆ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, योम पाकिस्तान के खुसूसी क्विज प्रोग्राम ये है मंजिल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फरवा नीलम। नाज़रीन, 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमाना ने बरे सगीर की हालत अबतर से अबतर होती चली गई और इस सूरत हाल ने मुस्लिम अकाबरीन को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कौम की बेहतरी के लिए मजीद अक़दाम करें। इस ज़िम्न में सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुसलमानों की बेहतरी जदीद अलूम के हसूल में है और यूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी, जबकि दीगर मुस्लिम अकाबरीन ने सोचा कि मुसलमानों में बरसगीर में सियासी शऊर और बेदारी पैदा की जाए। और नाजरीन, यूं 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी और फिर 1930 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तकसीम हिंद का नक्शा पेश किया और 1940 में यही मुतालबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक पे था। और फिर उसके बाद तमाम तर मुसलमाना ने बरे सगीर की जुबान पर यही एक नारा था, गोया मैं यूं क्यों ना कह दूं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नाज़रीन, मुस्लिम लीग की तारीख में ये इजलास इंतहाई नाकाबिले फरामोश अहमियत और हैसियत का हामिल है और इसके बाद मुस्लिम लीग में वो कुव्वत दर आई और हमारी मुस्लिम उम्मत में, हमारे नौजवानों में वो जोशो जज्बा दिखाई दिया कि जिसके साथ ये कौम मंजिल पाकिस्तान की तरफ रवां दवां हुई। ये जज्बा, ये इत्तेहाद फिर कभी कोई गुलाम कौम पेश ना कर सकी। जी नाजरीन, आज के मुकाबले के आगाज से पहले अपनी आज की टीमों का तारुफ हासिल किए लेते हैं। मेरी दाईं जानिब मौजूद हैं गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज कुपर रोड से मदिया यूसुफ, अब्दस वहीद, और उनके साथ विराजमान हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हिरा नईम, रफाकत अली जी, और मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं गवर्नमेंट एमनो कॉलेज लाहौर से हिंदा कामरान, सफिया जावेद। जी शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं हमारी आज के मुकाबले की आखिरी टीम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से तलत नजमी, साजिद इकबाल। जी साजिद इकबाल, आपसे मेरा आज के मुकाबले के आखिरी मरहले का पहला सवाल, जब तक पाकिस्तान कायम नहीं हो जाता मुसलमान और अरब हुकूमतें सही मानों में आजाद नहीं हो सकती। ये अल्फाज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कब और कहां फरमाए थे? दिसंबर 1946 में जब वो मिस्र गए थे और शाह फारूक से और मुफ्ती आजम फलस्तीन अमीनुल हुसैनी से मिले थे। आपने खासा तफसीली जवाब दिया और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बरतानिया के उस बादशाह का नाम बताइए जिसे अपने इश्क की वजह से तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी 1936 में किंग एडवर्ड दस्तबरदार हो गए थे एक अमेरिकन औरत जे सिम्पसन से शादी करने के लिए। आप तो इस तरह तफसील बता रहे हैं जैसे आप शादी में शामिल थे। किंग एडवर्ड हश्तम ने जी एक बेवा खातून के लिए, उनसे शादी करने के लिए उस वक्त कलीसा ने इजाजत नहीं दी, उनके कवानीन ऐसे थे, तो उसने कहा जी के तख्त ऐ पिया जी थोड़ा, मैं तो चले। उसने वो जो भी उस लेडी का नाम था उसकी बाहों में बाहें डाली और टहलता टहलता तख्त ताज को ठो, हेच शादी है बस हम तन्ना याहू। जवाब दुरुस्त है जी, 100 नंबर। आज वाइटल चाय की ये कार इस मखलूक खुदा के सामने
सवालात और किस्मत के बोर्ड के साथ साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आप जीत गए द विनर। The winner! तो आप सबकी मौजूदगी में बजती तालियों में वाइटल चाय के तरफ से, मालिकान की तरफ से, बल्कि मालिक ही गुलाम मुर्तजा तशरीफ लाएं और अपने हाथ से चाबी दे दें। अच्छा साहब, साजिद इकबाल साहब जिन्होंने कार जीती है, इनकी ख्वाहिश है कि जिन हाथों में ये परवान चढ़े हैं, ये चाहते हैं कि वो भी इस खुशी के मौके पर साथ आ जाएं और तस्वीर बनवा लें। फारूक